এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। হেলথ এক্সপ্রেসে আমরা প্রত্যেক দিন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলের বেশ কিছু স্বনামধন্য চিকিৎসকদের নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই, তারা আসেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি। সেরকমই আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা প্রথমেই আগে বলি যে ওই যে কথায় বলে না যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা আমরা বুঝি না। হ্যাঁ, সেই দাঁতজনিত বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়েই কেমন করে আমরা আমাদের দাঁতকে ভালো রাখবো এবং একটা সুন্দর হাসি আমরা হাসতে পারবো এবং ওই দাঁত সংক্রান্ত যে যে সমস্যাগুলো আসে তার জন্য আমাদের শরীরে কি কি এফেক্ট পড়ে এবং তার থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পাবো, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা জেনে নেব। এবং সেগুলো জানার জন্য আমাদের আজকে স্টুডিওতে, এক্সপ্রেস নিউজের স্টুডিওতে যে বিশিষ্ট ডক্টর উপস্থিত হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর প্রিয়লক্ষ্মী লাইসরাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। এবং প্রিয়লক্ষ্মী লাইসরাম, কনসালটেন্ট অর্থোডন্টিস্ট, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলের। এবার আপনাদের প্রথমেই একটা জিনিস হয়তো খটকা লাগবে যে আপনারা গাইনোকোলজিস্ট শুনেছেন, কার্ডিওলজিস্ট শুনেছেন, ডেন্টিস্ট অবধি শুনেছেন, কিন্তু অর্থোডন্টিস্ট এই কথাটা একটু কানে নতুন লাগছে না? তো प्रियलक्ष्मी ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, ये हम पहले आपको पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, जो आम आदमी के लैंग्वेज में जो बोलते हैं हम लोग तेरा मेरा दांत जो बोलते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है कि थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा दांत हो रहा है, तो वो सब को ठीक करने के लिए जो हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, तो क्लिप भी बोलते हैं, हाँ। तो वो ब्रेसेस लगा के एक अलाइनमेंट में लेके आता है जो एक स्माइल सेटअप करता है, तो वो उस हिसाब से जो ट्रीट करते हैं उन्हीं लोग को, डॉक्टर्स को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। अच्छा, और जो इलाज होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে অর্থোডন্টিস্ট কারা এবং আমাদের কোন কোন মানে দাঁতের কি সমস্যা হলে আমরা অর্থোডন্টিস্টের কাছে যাব। অর্থোডন্টিস্ট হচ্ছেন তারাই যারা আপনাদের এবড়োখেবড়ো দাঁতকে, আমরা যে ক্লিপ লাগানোর ব্যাপারে আমরা কিছুটা হলেও জানি সেটা অবধি ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় আমরা জানতাম না যে অর্থোডন্টিস্টটা কি। তাহলে এটা হচ্ছে যে প্রিয়লক্ষ্মী যেটা বললো যে আমাদের এবড়ো খেবড়ো বা টেরা বেঁকা যে দাঁতগুলো থাকে, অনেক সময় অনেকে বাড়ির লোকজন বা আমাদের আশেপাশের লোকজন বলে আরে তোর দাঁতটা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, একটু গিয়ে ঠিক করে ট্রিটমেন্ট করে আয়, একটা ক্লিপ লাগা যাতে দাঁতটা একটু সুন্দর হয় বা বিয়ে টিয়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, এরকম অনেক সময় আমাদের বাড়ির লোকজন, আশেপাশের লোকজন আমাদের বলে। তখন কোথায় যাবেন? তখন আপনারা যাবেন অর্থোডন্টিস্টের কাছে। এবং অর্থোডন্টিস্ট প্রিয়লক্ষ্মী আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং আপনারা প্রিয়লক্ষ্মীকে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে পাবেন। দুর্গাপুরেও কি পাওয়া যাবে? আসানসোলে পাওয়া যাবে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে। প্রিয়লক্ষ্মীর কাছে আসতে পারেন আপনাদের যদি কোনো এই সংক্রান্ত কোনো অসুবিধা থাকে। এবার আসি প্রিয়লক্ষ্মীর কাছে একটা প্রশ্ন প্রথমেই আসে, সেটা হচ্ছে যে ओरल हाइजीन क्या होता है और ये हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये ओरल हाइजीन मेंटेन करना? ये ओरल हाइजीन जो होता है, जो
बेसिक्स, बहुत एक बेसिक से स्टेप्स जो है जो हम लोग को फॉलो करना है। तो ओरल हाइजीन जो होता है एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना। तो क्या होता है ओरल हाइजीन बोल के ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई प्रोसीजर्स, ऐसा बेसिक्स नहीं है। लेकिन जो बेसिक प्रोसेस, दिन में 2 बार ब्रश करना, गार्गल यूज़ करना, तो खाना खाने के बाद माउथ वॉश करना, ये जो एक बेसिक्स जो होता है उसी को हम बोलते हैं ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। अच्छा, ये दिन में 2 बार करना जरूरी है? जरूरी है, मतलब ब्रश जो आप करते हैं दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, और गार्गल तो आप 3-4 बार कर सकते हैं। ये दो बार जो होता है वो सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, मैंने बेड में जाने से पहले वो जरूरी है कि हाँ, वो दोनों जरूरी है। लेकिन जरूरी इसलिए है कि हम लोग सोने के बाद क्या होता है, जब हम ब्रश नहीं करते तो क्या होता है कि सारा जो हम खाना पीना जो भी करें वो दांत में लॉज करके रहता है, एक्यूमुलेट करके रहता है, तो उससे कैविटी वगैरह होने का चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसलिए सोने से पहले एक बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। আচ্ছা, তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের এই ওরাল হাইজিন যেটা হচ্ছে যে আমাদের মুখের ভেতরের যে স্বাস্থ্য আর কি, যেটাকে আমরা সুন্দর করে রাখতে পারি, এটাতে যদি কোনো রকমের জীবাণু গ্রো না করে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে না, দিনে 2 বার ব্রাশ করা হচ্ছে একান্ত আবশ্যক। দিনে 2 বার আপনাকে ব্রাশ করতেই হবে। এটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট স্টেপ ওরাল হাইজিন মেনটেন করার। সকালে একবার এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে কেন না, এই যে সারাদিন আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি, जो खाना पीना होता है वो जम जाता है, वो सोने से पहले क्लीन होना चाहिए। उसके वो जब आप क्लीन नहीं करेंगे तो कैविटीज का चांसेस ज्यादा हो जाता है। তাহলে ক্যাভিটিস হতে পারে আপনাদের। সুতরাং এটা শুতে যাওয়ার আগে এখন থেকে এটা ঠিক করে নিন যে আপনাকে সকালবেলা যেরকম আপনি অভ্যেসের মধ্যে এটা রেখেছেন যে ব্রাশ করতেই হবে, রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও কিন্তু এটাকে অভ্যেসে পরিণত করে নিন। অনেকেও করেন, কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত করেন না তারা এটা করুন। এবং মাউথ ওয়াশ করতে হবে। माउथ वॉश करने के लिए कोई मेडिसिन है या कुछ है? बहुत सारे ब्रांड है जो हम लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या गर्म पानी में या ठंडा पानी में? नॉर्मल वाटर में हम लोग इसमें थोड़ा सा एक ढक्कन इसमें पानी में मिला के उसमें नॉर्मल गार्गल कर सकते हैं। और তাহলে কি হলো যে 2 বার ব্রাশ করতে হবে, গার্গল করতে হবে, এবং গার্গল করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে মাউথ ওয়াশ, যে কোনো একটা কোম্পানির আপনারা মাউথ ওয়াশ বাড়িতে রাখবেন, এবং সেটা দিয়ে আপনার নর্মাল এমনি জলের মধ্যে 1 চিপি দিয়ে আপনারা সেটা দিয়ে মাউথ ওয়াশ করে নেবেন। তাহলে কি হবে, একদম পুরো আপনার যে ভেতরে যে জমা খাবারগুলো থাকছে সেগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এটা তো গেল একটা ওরাল হাইজিন আমরা যেটা রুটিন ওয়াইজ প্রত্যেক দিন মেনটেন করব সেটার ব্যাপার। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि दिन में 1 बार ब्रश करना ही काफी होता है। असल में ये तो आप बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, 2 बार ब्रश करना जरूरी है। अब ओरल हाइजीन को इग्नोर करते हैं आम जो हम लोग होते हैं, वो ओरल हाइजीन को इग्नोर करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए, जो बहुत लोग हैं, ये बहुत कॉमन है कि ओरल हाइजीन इग्नोर कर लेता है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है तो थोड़ा सा साइड हो जाता है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस से। तो मैं कहना चाहूँगी कि जितना आप अपने बॉडी के अदर्स पार्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इतना ही ओरल हाइजीन में भी प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इग्नोर होने से क्या होता है, हम कॉमन लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, तो पायरिया डेवलप होता है, कैविटी होने का चांसेस होता है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से हो सकता है। अच्छा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ओरल हाइजीन में भी ध्यान दें। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि ओरल हाइजीन मेंटेन करने से वो जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो वो उसी तरह ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी है। ये क्या ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं अगर कोई करता है तो वो क्या अदर्स बॉडी पार्ट्स में भी इफेक्ट आ सकता है? एक्चुअली क्या होता है, जब मुंह में इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन रहता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने बॉडी के अंदर चले जाता है। अच्छा, तो क्या होता है उसमें लंग्स में, ठीक है, लंग्स में एक बोलता है निमोनिया का हाई होने का चांसेस होता है। फिर डायबिटिक निमोनिया का भी असर पड़ता है इसमें? अगर लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में चला गया तो निमोनिया होने का भी चांसेस होता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में आप देखिए कि बहुत सारा
वो हो जाता है कि पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, पायरिया के जो नेक्स्ट लेवल का जो होता है। अच्छा। तो बहुत सारा ऐसा होता है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ऐसे बॉडी में भी हो सकता है। तो ओरल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जो हमको ध्यान में देना चाहिए। हाँ, वो तो बोल रहे हैं जो हाँ। आप बोल रहे हैं, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत लोग important, उतना हाँ। मतलब कि वो दिमाग में नहीं लेते कि ओरल हाइजीन क्या होता है। वो तो एक बार हम ब्रश कर लेते हैं और चले जाते हैं। কিন্তু প্রিয়লক্ষ্মী যেটা বলছে সেটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। এটা যদি আমরা মেনটেন না করি তাহলে কিন্তু এই আমাদের মাউথ থেকে কিন্তু বিভিন্ন মানে ভাইরাস বা জীবাণু যা কিছু হবে দেহের কিন্তু অন্যান্য পার্টস, আদার বডি পার্টসে কিন্তু সেগুলো চলে যেতে পারে বা সেগুলো ছড়িয়ে যেতে পারে, ফেলাতা হয়। হ্যাঁ, তাহলে এটা খুবই একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ওরাল হাইজিন মেনটেন করতেই হবে, না হলে কিন্তু অন্যান্য বডি পার্ট, ও বললো যেটা যে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, মানে লাং, তারপরে আরো যা যা কিছু বডি পার্টস আছে সবেতে কিন্তু এফেক্ট করতে পারে। এবার হচ্ছে ऑर्थोडोंटिस्ट, आप बोल रहे थे कि ब्रेसेस और क्लिप्स ये जो होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है करना। ये तो हम लोग बोल देते हैं कि आपका दांत का जो गठन है वो ठीक नहीं है, आप कर लो, पर ये कितना जरूरी होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, किसी किसी का ऐसा जो उबर खाबर दांत होता है, हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सबसे मेन है जब ब्रश करते हैं तो जितना भी खाना फंसता है या फूड लॉन्चमेंट होता है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता। अच्छा, वो जो गैपिंग है वो गैप में अटक जाता है, इरेगुलर टीथ बोलते हैं, तो आगे पीछे जो होता है तो अच्छे से ब्रश से वो हट नहीं सकता है। तो अगर वो एक साथ अलाइनमेंट में रह जाता है तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। अच्छा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। सेकेंड थिंग, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप लोग के साथ प्रेजेंटेशन करो तो आप एक स्माइल अच्छा देना चाहता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसके लिए आई थिंक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी प्रोसीजर कि लेना चाहिए। হ্যাঁ, ঠিক যেরকম বলা হয় যে সুন্দর মুখের জয় যেমন সর্বত্র, তেমন কিন্তু সুন্দর একটা হাসি, একটা अच्छा स्माइल हाँ, भी अच्छा smile लोगों के मन में जा सकता है। आप जहाँ भी जाएंगे एक सुंदर एक स्माइल के साथ, तो आपका काम ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बढ़ जाएगा। तो ये ब्रेसेस के साथ और क्लिप के साथ जब आप ठीक करेंगे तो उसका जो पार्ट्स जो आपके टीथ में रह जाता है वो सब क्लीन हो जाएगा एक अलाइनमेंट में, अगर टीथ रहेगा तो। ऑर्थोडोंटिस्ट, आपके एक ऑर्थोडोंटिस्ट आप है, तो आपको क्या लगता है कि शुरू में सिम्टम क्या होता है, एक जो लोग ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं उसके लिए जो जो तकलीफें आती है, तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम होता है शुरुआत में? ये सिम्टम्स होता है जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जो जिसका पोर ओरल हाइजीन होता है। तो स्टार्टिंग में ये देखने को मिलता है। ओरल हाइजीन का मतलब पोर ओरल हाइजीन का मतलब है कि दांत में जिसमें ब्रश ठीक से नहीं कर रहा है, कि कभी स्किफ कर रहा है, ठीक है, फिर माउथ वॉश यूज नहीं कर रहा है, तो ये जो खाना वगैरह खाता है तो फंसता रहता है, वो सब चीज होता है पोर ओरल हाइजीन। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हमको देखने को मिलता है जिंजाइवा, जो गम्स जो बोलते हैं मेडिकल टाइम में जिंजाइवा बोलते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो ब्लीडिंग होता है कभी ब्रश करते टाइम, फिर सडनली ऐसा ब्लीडिंग देखने को। ब्रश करने से ब्लीडिंग होता है कि नॉर्मली होता है? नॉर्मली होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो गया अच्छा। है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं पायरिया, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, जब खाना ऐसे ऐसे फंस जाता है ना, तो एक पत्थर जैसा बनता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटल कैलकुलस। तो उससे क्या होता है, जब वो बन गया तो हम लोग के मसूरे को वो धक्का देता है नीचे। अच्छा। तो मसूरा नीचे चले जाते हैं, तो जो दांतों का रूट है वो एक्सपोज होने लग जाता है। तो एक्सपोज होने के बाद दांत हिलने लग जाता है। तो ये एक होता है नहीं केयर करने की वजह से जो सिम्टम्स जो दिखता है, ये फर्स्ट सिम्टम यही देखने को मिलता है। सेकेंडली कैविटी तो बहुत ही कॉमन है कि कैविटी भी हो सकता है। तो ये ऐसा कुछ सिम्टम्स है जो हम लोग को देखने को मिलता है एज अ डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। ये जब किसी का होगा तो मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कोई पेशेंट का?
फर्स्ट स्टेप में हम लोग सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम अपना इंस्ट्रूमेंट से उसको क्लीनिंग करते हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप क्लीनिंग करवाइए ताकि वो एकदम ठीक रहे। अच्छा, क्लीनिंग करने से वो मेंटेन करना पड़ता है कि एक बार में पूरा क्लीन हो जाता है? नहीं, एक जैसे क्लीनिंग तो हो जाएगा, उसके बाद वो पेशेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हाँ, कैसे रखना है, कि ब्रश करना, प्रॉपर ब्रश करना, माउथ वॉश यूज़ करना, यही सब होना चाहिए। मैंने एक बार क्लीन कर लिए तो सोचा कि ये चलता ही रहेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, मेंटेन करना ही पड़ेगा, মেনটেন Yes, করনা পড়েগা। yes. আপনারা একবার আপনারা গিয়ে যদি মানে পুরোটা পরিষ্কার করে নিলেন দাঁতটাকে, সেটা তো সম্ভব, ডাক্তার করে দিল, কিন্তু এর পরের যে স্টেপটা মানে আপনাকে সেটাকে কিন্তু মেনটেন করতে হবে। আপনি আবার গিয়ে যদি আপনার সেই পুরনো লাইফস্টাইলে ফিরে যান তাহলে কিন্তু হবে না, আপনাকে সেটা আবার মেনটেন করতে হবে। এই 2 বার করে যা যা উনি বলছেন যে 2 বার করে ব্রাশ করতে হবে, মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলকুচি করতে হবে, তারপরে ধরুন আপনাকে গার্গল করতে হবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেসে একটা করে যেতে হবে, আপনার জীবনের অভ্যেসের মধ্যে পরিণত করতে হবে। মানে এটা আমাদের মানে প্রত্যেকদিন আমরা যেরকম স্নান করি, প্রত্যেকদিন আমরা যেরকম খাবার খাই, ঠিক সেরকম ভাবেই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। अच्छा, ये जो ओरल हाइजीन होता है ये क्या कुछ एज ग्रुप में ही होता है या एज ग्रुप नहीं है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। फ्रॉम द बर्थ 1 वीक आफ्टर बर्थ से लेके एंड तक हमको मेंटेन करना चाहिए। अच्छा। ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है अच्छा, ओरल हाइजीन। ये जो असर जो पड़ता है ये कौन सा एज ग्रुप में पड़ता है? कि एकदम बच्चे लोगों के बच्चे, लिए जैसे बच्चे जिसका प्राइमरी टूथ आता है, बच्चे से लेके बड़ों तक सब पे असर पड़ जाता है। আচ্ছা আচ্ছা, তো তো আমরা এটা দেখলাম যে যেটা প্রিয়লক্ষ্মী বলছে যে ছোট বড় বলে এখানে কোনো কিছু ব্যাপার নেই, কেননা ওরাল হাইজিন মেনটেন করা একদম যখন আপনার কাছে আপনার বাড়িতে একজন শিশু এলো সেই প্রথম দিন থেকে ডে 1 থেকে একদম যারা বয়স্ক বাড়িতে রয়েছেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু এই ওরাল হাইজিনকে মেনটেন করা উচিত, কেননা কার কখন দাঁতে কিরকম ভাবে হঠাৎ করে, আর এটা তো খুব হঠাৎ আসে না, আপনি নেগলেক্ট করতে থাকলেন হঠাৎ করে আপনার দাঁতটা ব্যথা হলো, তখন আপনার মনে পড়লো যে আপনি আরে আমাকে তো এরকম দাঁত ব্যথা হচ্ছে, তাহলে আমাকে একটা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সেটা না, মানে ये भी जरूरी होता है कि एक प्रॉब्लम दांत में हुआ तब हम डॉक्टर के पास गए, ये तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है कि एवरी 6 मंथ डेंटल चेकअप होना चाहिए सबका। अच्छा, 6 मंथ में? एवरी 6 मंथ में एक बार डेंटल चेकअप जरूर होना चाहिए। तो अगर लोग ये फॉलो करने लग जाएगा तो आई डोंट थिंक कि इतना डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कैसे पेशेंट पाते हैं कि ये माने अचानक कुछ हो जाने से आता है कि 6 मंथ? नहीं, सबका वही है कि मिक्स्ड है, कि अच्छा। ऐसा भी लोग आता है कि अचानक ज्यादा से कौन सा पेन, है? ज्यादा ज्यादा कौन सा है? वो अचानक से जो आता अचानक है से। वो ज्यादा होता है, क्योंकि पीपल्स आर लेस अवेयर ऑफ इट आई थिंक। সচেতনতা মানে সচেতনতা আমাদের খুব কম আমাদের দাঁত নিয়ে। যে প্রিয়লক্ষ্মী যেটা বলছে যে প্রতি 6 মাস অন্তর আপনাকে এই ওরাল হাইজিন মেনটেন করার জন্য আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এবং আপনার দাঁতের কি কি সমস্যা আসতে পারে বা পরিষ্কার করানো এগুলো সমস্ত করতে হয়, কিন্তু সেটা আমরা বেশিরভাগ মানুষই সেটা করে উঠতে পারি না। আমরা কি করি, ওই যখন আমাদের যেটা সমস্যা হলো, দাঁত ব্যথা করলো, দাঁত নড়ছে, দাঁতের মধ্যে ওই যে ক্যাভিটিস হলে আমরা বলি পোকা হয়ে গেছে, তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন আমাদের কাছে আসে, আমাদের প্রচন্ড পেইনফুল একটা পিরিয়ড চলে, সেই সময়টাতে কিন্তু আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, তার আগে কিন্তু যাই না। এটা প্রিয়লক্ষ্মীরও এটাই এক্সপিরিয়েন্স যে সেই রেশিওটাই বেশি যাদের হঠাৎ কিছু হচ্ছে তখন আসার, কিন্তু এটা আসার আগে কিন্তু এটা প্রোটেক্ট করা সম্ভব। প্রোটেক্ট করতে গেলে আপনাকে কিন্তু ডাক্তারের কাছে 6 মাস অন্তর অন্তর আসতে হবে। করেন না যে এরকম নয়, যে এরকমও অনেক পেশেন্ট আসেন যারা 6 মাস অন্তর অন্তর থরো ট্রিটমেন্টের মধ্যে একটা ট্রিটমেন্ট বলবো না, মানে একটা ওরাল হাইজিন মেনটেন করার জন্য যা যা কিছু দরকার সেগুলো করে থাকেন। अच्छा, ये जो स्वस्थ दांत और मसूरों की बनाए रखने के लिए जो खान पान और मतलब कि जो हमारा लाइफस्टाइल होता है,
ये भी तो कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि खाने पीने में मैं एडवाइस करूंगी या सजेस्ट करूंगी कि सुगरी ड्रिंक अवॉइड कीजिएगा या फिर लेस, जैसे क्योंकि सुगरी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, फिर चिप्स, चॉकलेट, अब ये बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ अगर थोड़ा सा कम करे तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर आते हैं ना, ये सब बोल के जाते हैं कि ना दर्शकों को मैंने मालूम होता है कि मैंने ये जो सभी लोग बोलते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है तो एकदम पलट गया है ना लाइफस्टाइल। वो हम लोग जब छोटे थे ये सब तो नहीं खाते थे ना। और अब देखिएगा तो हमारे हर घर में हर बच्चा, वो आपको चिप्स देना ही पड़ेगा, चॉकलेट देना ही पड़ेगा, वो जो बर्गर है, पिज्जा है। डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि ये अवॉइड करो, बट लाइफस्टाइल चेंज करना तो एक्चुअली मुश्किल हो जाता है कि तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो फाइबर्स चीज होता है, वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होते हैं, वो ज़्यादा इंटेक में रखिए। और वो सुगरी ड्रिंक्स ये सब थोड़ा सा कम रखिए। तो ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा ही चेंज करके, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके हम लोग হেলদি লাইফ আমরা লিড করতে পারি। যে একটু যদি আমরা কম্প্রোমাইজ করি, খাবেন না কেন, খান আপনারা, কিন্তু সেটা যদি রোজকার ব্যাপারে মানে রেগুলার একটা লাইফস্টাইলের মধ্যে না এনে যদি একটা মানে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে ধরুন আপনি ছুটির দিন কোথাও গেলেন তখন একটুখানি কিছু খেলেন, খেতেই পারেন, কিন্তু সেটা যদি আপনি রেগুলার হ্যাবিটের মধ্যে করে নেন যে বাচ্চাকে বায়না করছে বলেই আপনাকে এটা দিয়ে দিতে হবে বা ওটা দিয়ে দিতে হবে, চকলেট দিয়ে দিতে হবে, চিপস দিয়ে দিতে হবে, বার্গার বা ধরুন পিৎজা, এগুলোই হচ্ছে আপনার ছেলে মেয়ের খাবার, তাহলে কিন্তু একটু সমস্যা আছে। তাহলে দাঁতে এফেক্ট হবেই এবং সেটা থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্যাভিটিস বা পাইরিয়া বা যে ধরনের রোগগুলো হয় বা জীবাণু যেগুলো মুখে থাকবে সেগুলো বডির অন্য পার্টসে যাওয়া, এগুলো কিন্তু চলতেই থাকবে। তো এই লাইফস্টাইলটাকে পরিবর্তন করা মানে প্রিয়লক্ষ্মী যেটা বলছে যে শাকসবজি খাওয়া, फाइबर জাতীয় খাবার খাওয়া, বা ধরুন पानी का भी कोई असर होता है, पानी ज्यादा पानी खाने से? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ज्यादा इंटेक ज्यादा बेटर। पानी तो पीना ही चाहिए। शुगर फ्री ड्रिंक, हाँ, मतलब ऐसा सुगरी ड्रिंक आजकल तो कोल्ड ड्रिंक ये सब, कि आप चाय में शुगर नहीं यस। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना मतलब मैं भी बहुत बचपन में करते थे, तब मुझे समझ में नहीं आता था, तो अब मुझे समझ में आ रहा है, तो आई थिंक आई शुड ফলো না। প্রিয়লক্ষ্মী যখন চা অফার করা হলো তখন ও ফার্স্টে যেটা বললো যে চিনিটা বাদ দিয়ে, মানে ব্ল্যাক কফি বা চিনি চা খাবে ব্ল্যাক, কিন্তু সেটা হচ্ছে চিনি বাদ দিয়ে। তো যেটা এখন বললো যে চিনি দেওয়া কোনো রকমের পানীয়, মানে যেটা আমরা খেয়ে থাকি কোল্ড ড্রিঙ্ক হোক বা এরকম কিছু, বা যারা ধরুন যাদের দাঁতে প্রবলেম বারবার আসে তারা চা কফিটাতেও চিনি যদি একটু অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে মনে হয় যে একটু বেটার হয়। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जो ये ओरल हाइजीन ये क्या बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने पेरेंट्स होता है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? यस, एक्चुअली बच्चा में क्या होता है, जैसे उसका फर्स्ट डेट आता है, ठीक है, तब से हमको टेक केयर करना चाहिए। जैसे कि टूथ ब्रश करना सिखाना, ठीक है, सिखाना तो होगा नहीं, लेकिन जैसे फर्स्ट टूथ आता है तब से हम ओरल हाइजीन बच्चे का स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का अलग सा टूथपेस्ट हम लोग देते हैं, तो उसमें फ्लोराइड क्वांटिटी नहीं होता है, तो वो वाला टूथपेस्ट यूज़ करना है। तो मतलब बच्चे में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कुछ भी खा लेता है लेकिन वो स्पिट नहीं कर पाता है, फिर गर्गल नहीं कर पाता है। तो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए ओरल हाइजीन का, क्योंकि वंस बच्चे को कैविटी वगैरह हो जाता है तो वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत पेनफुल होता है। तो ये सब थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जैसे फर्स्ट टूथ आया तो उसको ब्रशिंग वगैरह करवाना चाहिए, ठीक है, और ख़ास करके थोड़ा सा लिमिट में दीजिए। चिप्स, चॉकलेट्स ये सब ना ही दे तो भी अच्छा है, लेकिन आजकल बच्चा मानता नहीं है, तो थोड़ा सा लिमिट में दीजिए। उसके बाद जब खाने के बाद या फिर सोने के टाइम में जैसे फीडिंग होता है, ठीक है, बॉटल फीडिंग होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ताकि कैविटी वगैरह ना हो जाए।
तो थोड़ा सा वॉश हो जाता है, वॉश हो जाता है। तो बहुत सारा बच्चे का हैबिट्स होता है कि बॉटल फीडिंग करके वो सो जाता है, तो उससे क्या होता है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड कैरीज करके होता है, तो कैविटी हो जाता है। अच्छा। तो दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, तो वो सबसे थोड़ा सा प्रिवेंशन होता है कैविटी वगैरह होने से। আচ্ছা, তাহলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ধরুন যখনই তাদের দাঁত উঠছে তখন থেকেই আপনারা ব্রাশ ইউজ করুন। একটা স্পেসিফিক কিছু একটা ব্রাশ আছে যেটা ডেন্টিস্টদের কাছে গেলে ওরা বলে দেয় যে এই ধরনের ব্রাশ ইউজ করুন। তো সেই ধরনের ব্রাশ ইউজ করে তাদেরকে প্র্যাকটিসের মধ্যে আনা যে এবার তোমাকে শিখতে হবে দাঁতটা ব্রাশ করা, মানে প্রথমে বাবা মায়েরাই করিয়ে দেবে, তারপরে আস্তে আস্তে যত বড় হবে তখন নিজে থেকে সেই প্র্যাকটিসটা থেকে যাবে। তো সেটা ফার্স্টে ব্রাশ করা, তারপরে ধরুন যখন বাচ্চা মানে দুধ খাচ্ছে, বটলে দুধ খাইয়ে ধরুন অনেকে খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু সেই সময়টাতেও কিন্তু ওই অবস্থাতে মুখটা ছেড়ে দিলে হবে না, তখন একটু জল খাইয়ে দিন। জল খেলে কি হবে, যে দুধের যে ব্যাপারটা ওটা কিন্তু একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্যাভিটিস বা যা কিছু হোক সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। ধরুন বাচ্চা রয়েছে এখন কিছু হলো না, কিন্তু কিছুদিন পরে আর একটু বড় হলে ওগুলো এফেক্ট করতে পারে। তো সেক্ষেত্রে একদম ডে 1 থেকে একদম প্রথম থেকে বাচ্চাদের এই হ্যাবিটটা করিয়ে দিন। যেরকম ওদেরকে শেখাবেন যে যেরকম করে তোমরা খাবার খাবে, যেটা আমাদের খেতে হয়, যেটা আমাদেরকে চুল আঁচড়াতে হয়, ঠিক সেরকম ভাবে দিনে 2 বার ব্রাশ করা এবং মাউথ ওয়াশ করা, এগুলোও কিন্তু আমাদের একটা করে বেসিক নিডের মধ্যে পড়ে এবং এগুলো আমাদেরকে করতে হবে। এটা শিখিয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি। अब हम आपके पास ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, जब तक दर्द, ये जो हम बोल रहे थे कि जब तक नहीं जाते हैं जो गंभीर जो समस्या ये आते हैं तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर देखिए इसमें क्या ओल्ड एज का जो एज ग्रुप है उसमें बहुत दिक्कत आ सकता है कि कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए ओल्ड एज में क्या होता है कि जैसे कि दांत में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कि थोड़ा सा 1-2 दवाई खा के ऐसे छोड़ देता है। लेकिन मेडिसिन खाने से क्या होता है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, 1-2 दिन रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन जो अंदर हो के रखा है वो ख़त्म नहीं होगा, तो वो अंदर ही अंदर रह जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ओल्ड एज होने के बाद क्या होता है एक लिमिट तक कमज़ोर हो जाता है, बोन कमज़ोर हो जाता है, तो उसके साथ साथ ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वैसे ही रह जाएगा। तो ओल्ड एज हो या यंग एज हो, वंस अगर कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक दे शुड रश टू द डेंटिस्ट, कि दिखाइए फिर उसका ट्रीटमेंट करवाइए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, ये नहीं है कि जो ओल्ड एज का जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको ही थोड़ा ध्यान दे के डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बच्चों को ये जो आप बोल रहे थे कि 6 मंथ्स के अंदर जाना पड़ेगा, ये क्या बच्चों के लिए भी आप बोल रहे हैं? यस सबका, मतलब जैसे वंस बच्चे का टीथ आया, ठीक है, तो उस टाइम से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एवरी 6 मंथ हर किसी का, एवरी इंडिविजुअल का डेंटल चेकअप होना चाहिए। और ये जो मसूरे और दांत के लिए जो ओल्ड एज में जो जाता है उसके लिए क्या अलग से देखभाल करना कुछ है क्या? जैसे कि किसी पेशेंट डेंचर लगाता है जिसका एक भी दांत तो नहीं है। क्या लगाता है? डेंचर। वो क्या होता है? ये डेंचर जो आर्टिफिशियल दांत, आर्टिफिशियल दांत जो होता है, तो वो डेंचर लगाता है, तो क्या होता है कि कभी कभार लूज हो जाता है, ठीक है, और वो लोग एकदम क्लीन नहीं कर पाता है, तो क्लीन नहीं होने से वेरी रेयर बट फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। तो डेंचर को क्लीन करना, फिर डेंचर बहुत टाइम तक लगा के रखने से क्या होता है बोन कमज़ोर हो जाता है, तो वो लूज आ जाता है। तो वो सब भी ध्यान देना चाहिए। जो उसका भी तो कोई प्रोसीड्यूर होता है कि ये दिन में कितने बार खोल के रखना पड़ेगा कि... ये आप मतलब बस सोने के टाइम पे खोल के रखना है, ठीक है, और बाकी दिन उसको लगा के रखना है। अच्छा, और वो वॉश कैसे करेंगे? वॉश नॉर्मल पानी से खोल के नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए, लेकिन एवरीडे वॉश करना चाहिए। जो आपको मैंने आपका जो टीथ अगर असली है तो उसका जिस तरह से देखभाल करना पड़ता है वो उस
से भी करना चाहिए, আর্টিফিশিয়াল में भी उस करना तरह से ही करना তাহলে चाहिए। আপনারা যারা ধরুন যাদের দাঁত পড়ে গেছে, যারা নতুন করে দাঁত লাগিয়েছেন, আর্টিফিশিয়াল দাঁত লাগিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে বলি, তাদের জন্য বলি যে আপনাদের কিন্তু একদম প্রপারলি এটা ওয়াশ করাটা খুব দরকার। আপনি সারাদিন সেই আর্টিফিশিয়াল দাঁতটা পরে থাকুন, কিন্তু যেরকম নর্মাল দাঁত থাকলে যেরকম ভাবে ওরাল হাইজিন মেনটেন করা প্রয়োজন হয়, বা ধরুন মানে সেটাকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়, সেটা কিন্তু আপনাদেরকেও করতে হবে। এবং এটা খুলে সব সময় লাগিয়ে রাখলেন, মানে 2-3 দিন লাগিয়ে রাখলেন, তারপরে গিয়ে একবার খুললেন, ওয়াশ করলেন, এটা কিন্তু হবে না। দিনে কিন্তু আপনাকে অন্ততপক্ষে 2 बार क्या खोल के, हाँ 2 wash बार करना? 1 बार कर सकते 2 बार 1 बार 1 to 2 टाइम्स अ डे। अच्छा 1 to 2 टाइम्स आपको खोल के उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बढ़ती उम्र में बढ़ती उम्रों के साथ दांत गिरना, मसूरों का कमजोर होना, हाँ, और मुंह सूख जाना, ये आम जो प्रॉब्लम्स होता है, ये तो हम देखते हैं। इसे क्या, इसको क्या विशेष देखभाल करना पड़ता है ये सब चीज के लिए? यस, एक्चुअली जैसे जैसे ओल्ड एज होता है, वो लोग का दांत कमज़ोर हो जाता है, तो दांत हिलने लग जाता है और उनका पायरिया होने का भी बहुत हाई चांसेस होता है। तो ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, और ये सब थोड़ा सा होना चाहिए बेसिक्स थिंग। तो इसके वजह से उसका जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा है, वो हल्का, मतलब एक लिमिट तक वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, एक लिमिट तक हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, बट एक लिमिट तक आप आपका जो दांत है उसको आप ठीक ठाक से रख सकते हैं। उसके बाद तो जब एकदम पूरा इसके बाद तो जो भी तकलीफ है, जिस दांत में तकलीफ है, उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इलाज नहीं होगा तब तक वो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, इन जनरल जो बेसिक जो हमको फॉलो करना चाहिए वो करना है, लेकिन जो पर्टिकुलर दांत का जो जैसे कैरीज है, डेंटल कैविटी हो गया है, तो उस दांत को हम ऐसे नॉर्मल जो बेसिक्स प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मल ओरल हाइजीन मेंटेन करना, वो सब करने से वो कभी ठीक नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं होगा। वो पर्टिकुलर टूथ के लिए तो आपको ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन बाकी जो दांत है उसके लिए तो जो ओरल हाइजीन हमको फॉलो करना है, प्रोटोकॉल, वो फॉलो करना चाहिए, প্রোটোকল ফলো করতে চাইয়ে। তো আপনারা শুনলেন যে যেটা ডক্টর বললেন যে বয়স্ক মানুষদের মাড়ি একটু ঢিলা হয়ে যায় বা দাঁত নড়ে, সেগুলো কিন্তু যেরকম করে উনি বললেন যে যেগুলো যেগুলো করতে হবে সেগুলোকে করতে হবে, এবং করার পর আপনি কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত আপনার দাঁতকে সুস্থ রাখতে পারেন। এরপর যেটা হবে সেটা তো একদিন না একদিন সবাইকারই দাঁত খোয়াতেই হবে, সেটা কিছু করার নেই, সব সময় ধরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আপনারা এই জিনিসগুলো ফলো করেন তাহলে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত আপনাদের দাঁতকে আপনারা সুস্থ রাখতে পারবেন। আচ্ছা, ये जो कृत्रिम जो दांत होता है, आर्टिफिशियल जो दांत होता है, उसको पहनने वाले बुजुर्गों के लिए कि कुछ विशेष मौखिक माने ओरल हाइजीन मेंटेन करना जो आप बोल रहे थे, यही मेंटेन करने से ही होगा। अच्छा, ये जो ओल्ड एज का जो नागरिक होते हैं उसको जो जो दवाइयाँ लेना पड़ता है, पकड़िए कि किसी का शुगर है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का और कुछ जो होता है तो प्रॉब्लम्स होता है, तो इसके लिए जो मेडिसिन लेता है वो क्या कुछ असर करता है? एक्चुअली क्या है, जो कुछ कुछ दवाई है जिसके वजह से असर करते, जैसे कि एंटी डिप्रेशंस हो गया, एंटी हिस्टामिन हो गया, वो लेने से क्या होता है, माउथ में ना ड्राइनेस हो जाता है। ठीक है, ड्राइनेस हो जाता है, उसके वजह से कैरीज होने का रिस्क हायर हो जाता है। तो ऐसा कुछ दवाई है जो जिसके वजह से कैरीज का क्या क्या सिम्टम होता है? कैरीज का कैविटी, जब आप जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग का जो दांत में ना एक ब्लैकिश पोर्शन देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैकिश पोर्शन क्या होता है, जब स्टार्टिंग में एक फर्स्ट स्टेज में तो थोड़ा सा माइनर होता है, तो जैसे अगर वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया उसका, तो वो धीरे धीरे करके डिप होते जाता है।
ठीक है। अच्छा। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग देख सकते हैं वो जो एक होल हो जाता है यस ना, एक्चुअली वो होल हो जाता है, वो होल होने से ही स्टार्ट होता है। वो जो स्टार्टिंग में वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन वो कैरिस है, वो और कैरिस जब डीप होके जो डीप होके जो अगर वो अंदर तक चला गया, वो इन्फ्लेमेशन अंदर वो तक चला cavities गया, है। नहीं वो सेम है कैविटीज जो आप होल बोल रहे हैं, हाँ। तो उसी से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो जैसे जैसे उसको अनट्रीटेड रखा गया, तो वो पूरा दांत को टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म कर देगा। हाँ, तो वो मतलब उस हिसाब से वो स्प्रेड होता है। अच्छा। उसको क्या मैंने उठाना ही पड़ता है उस दांत नहीं को? एक्चुअली क्या होता है कि हम पहले तो हमको एक एक्सरे करके देखना पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर खाली ऊपर का तो दिख रहा है, अंदर के पोर्शंस तो नहीं दिख रहा है। तो अंदर के पोर्शंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए एक्सरे करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि डेंटल कैरीज की वजह से अंदर में दांत का जो रूट में उसमें एब्सेस बन जाता है। अच्छा, तो एब्सेस क्या होता है कि वो बाहर भी नहीं आ पा रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो साइनस ओपनिंग बोलता है, या साइड से एक पॉइंट बनता है तो उसमें से ड्रेन होता है। अगर इंसस केस दांत को निकालना पड़ता है, अगर नहीं है तो हम ऐसे मतलब करते हैं कि जितना हम बचा सकते हैं दांत को बचाना चाहिए, नेचुरल टीथ को बचाना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया, बचाने लायक नहीं है, तब जाके हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, पहले आप बचाने की कोशिश करते पहले हैं। बचाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, तब जाके हम निकालते हैं। आपके ये जो हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल है आसानसोल में, ये सब ट्रीटमेंट होता है यस उधर? सब ट्रीटमेंट उसमें अवेलेबल है। अच्छा, ये जो एक्सरे का दांत का एक्सरे उधर ही हो जाता है? उधर ही हो जाता है। তাহলে আপনারা দেখলেন যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল সেখানে আসানসোল, সেখানে কিন্তু আমরা আগেও যা যা কিছু ডক্টরস নিয়ে এখানে বসেছি, যা যা কিছু আলোচনা হয়েছে সেগুলো তো আছেই, এবং দাঁতের সমস্যার সমাধান যদি আপনারা পেতে চান তাহলে কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল এই চত্বরের মধ্যে কিন্তু আসানসোলে ভীষণ ভালো একটা হসপিটাল, এবং এখানে এলে আপনার দাঁতের যা যা কিছু সমস্যা সেই সমস্যার কিন্তু সমাধান একেবারে হবে। এবং ওই যে ও যেটা বলছিল যে প্রিয়লক্ষ্মী, যে একেবারে এক্সরে করে ভেতর থেকে, মানে ওপর থেকে তো দেখে একটা দাঁত আপনার নড়ছে আপনাকে তুলে দিল, এটা কিন্তু নয়। মানে প্রথমে হচ্ছে এক্সরেটা করা দরকার, সেই এক্সরে করে দেখতে হবে যে সেই ভেতরের যে শেকড়, মানে আপনার দাঁতটা কতটা ভেতর দিকে মজবুত, তাহলে সেইভাবে আপনাকে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে। দাঁতটা তুলে দিলে কিন্তু এটাই শেষ, এটাই কিন্তু ট্রিটমেন্ট নয়। এটা কিন্তু আমরা অনেকেই ভাবি যে मेरा दांत जो हिल रहा है, मेरा दांत में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर मेरे दांत को उठा दीजिए, ऐसा ही हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये पेशेंट्स को तो यही है कि हाँ दांत में दर्द हो रहा है तो आप उठा दीजिए। तो हम पहले चेक करते हैं, अगर हिल रहा है, जो दांत हिल रहा है उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको तो हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो दर्द फर्म है, वो खाली उसमें कैविटी हुआ है कि और दांत एकदम फर्म है, टाइट है, तो उसको तो हम एक्सरे दे के पहले देखते हैं कि ये दांत बचा सकता है कि नहीं। अगर बचा सकते हैं हम तो पूरा कोशिश करते हैं वो बचाने के लिए। जो नेचुरल चीज है उसको तो रखना पड़ेगा, उसको तो आर्टिफिशियल में हमारा ट्रांसफर करना जरूरी 100% नहीं। कोशिश रहता है कि ন্যাচারাল টিথ को हम बचाएं। হ্যাঁ, তাহলে এটা বুঝতে পারছেন যে ওনারা কতটা কেয়ার নিয়ে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল এটা দেখাশোনা করেন। যে আপনি যে গেলেন, যে আপনি বললেন আমার যন্ত্রণা হচ্ছে আমাকে তুলে দিন, এটা কিন্তু নয়। ওনারা ভালো করে আপনাকে দেখবেন, যে যদি ওটা তোলার মতো হয় তবেই তুলবেন, কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে ন্যাচারাল জিনিস রাখাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আপনার একটা দাঁত চলে গেল তো চলেই গেল, কিন্তু যখন সেটা আপনার দাঁতটাকে যদি রাখার মতন পরিস্থিতিতে থাকে, তাহলে চারপাশের একটা ট্রিটমেন্ট করে সেই দাঁতটাকে ওনারা রেখে দেন, এবং নর্মাল একটা লাইফে আবার আপনারা ফিরে যেতে পারেন কিছু কিছু ওরাল হাইজিন মেনটেন করার মধ্যে দিয়ে। তো সুতরাং এই আমি যেটাতে বলছিলাম যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কিন্তু ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টটাও কিন্তু ভীষণ স্ট্রং। আপনারা যারা আসানসোলে আছেন তারা তো আসানসোল থেকে আসানসোলে যাবেনই, কেননা আপনাদেরকে আর দুর্গাপুরে আসতে হচ্ছে না এই সমস্ত কারণের জন্য, মানে আপনার কোনো প্রবলেমের জন্য আসানসোলেই আপনি সমস্ত এক ছাদের তলায় সমস্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছেন। এবং শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসা নয়, রোগের চিকিৎসা করতে গেলে যা যা কিছু আপনার আশেপাশে যা মানে টেস্টগুলো হয় সেই সমস্ত টেস্টের ব্যবস্থাও কিন্তু রয়েছে, এবং একেবারে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেগুলো মানে একটা দাঁতের প্রবলেমের ক্ষেত্রেও যে
যেটা একবারে নতুন যে পদ্ধতি সেই সমস্ত কিছু দিয়ে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা হয়, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি তাদের কাছে রয়েছে। সুতরাং হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল হোক বা দুর্গাপুর সবসময় কিন্তু এক কদম এগিয়ে থাকে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই। তো এক্ষেত্রেও দাঁতের যে ডেন্টাল যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেটাও কিন্তু ভীষণ স্ট্রং। আপনাদের যাদের কোনো ওই যে আবারও বলি যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝুন, এবং আপনার যেখানে ভালো মনে হচ্ছে একবার ঘুরে যান হেলথ ওয়ার্ল্ডে, এলে কিন্তু আপনাকে ফিরতে হবে না। সুতরাং এরকম কোনো সমস্যার আভাস যখন পাবেন তখন কিন্তু আপনারা কিন্তু সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে যান এবং ডাক্তারকে দেখান, ডাক্তারকে বলুন যে এরকম এরকম প্রবলেম আমার হচ্ছে। বা যদি প্রবলেম না, अच्छा प्रॉब्लम अगर नहीं आता है तब भी क्या डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है? एक बार चेकअप जरूर करना चाहिए एवरी 6 मंथ में। वो भी 6 में मतलब ऐसे रिकमेंडेशन है कि इट्स एन एवरी इंडिविजुअल को हर 6 मंथ में एक बार डेंटिस्ट के पास चेकअप करना चाहिए जाके, क्योंकि क्या होता है, एक बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक। तो क्या होता है, कुछ होने से पहले रोकना वही बहुत जरूरी আর যখন অবশ্যই যে হেলথ ওয়ার্ল্ড রয়েছে আপনার হাতের কাছে, যখন মানে প্রিয়লক্ষ্মীর মতন ডক্টররা ওখানে রয়েছেন, এত ভালো করে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছেন এবং এত সচেতনতা কি কি ভাবে করা যায় এগুলো যখন বলছেন, তখন কেনই বা বাড়িতে থাকবেন বসে? আপনারা বাড়িতে বসে না থেকে নিজেদের দাঁতটাকে একটু গিয়ে দেখিয়ে নিন, এবং দেখিয়ে নিলে আপনাদের যেটা হবে যে আপনাদের দাঁতটা চিরদিনের জন্য একটা সুস্থ দাঁত থাকবে, একটা সুন্দর হাসি থাকবে, যেটা আপনার কনফিডেন্স লেভেলটাকে অনেক অনেক দূর বাড়িয়ে দেবে। আপনার ধরুন যারা একদম মানে কি বলবো যুবক যুবতী যারা রয়েছে, তাদের একটা ধরো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ, একটা সুন্দর স্মাইলের সঙ্গে গেলে বা একটা সুন্দর দাঁতের সঙ্গে যদি তোমার একটা থাকে, তোমার চেহারার সঙ্গে, চেহারাটাই বদলে দেবে, কনফিডেন্স লেভেলটাই বদলে দেবে। সুতরাং এই তুমি শুনলে যে আপনারা সকলেই শুনলেন যে অর্থোডন্টিস্ট উনি, তো অর্থোডন্টিস্টদের কাজই এটা হচ্ছে যে আপনার দাঁতের যদি কোনো, এই যে ওরাল হাইজিন নিয়ে তো আমরা কথা বললাম, কিন্তু ওরাল হাইজিনের পাশাপাশি আমাদের আরো কিছু সমস্যা থাকে, যেটা দাঁত এবড়ো খেবড়ো বা দাঁতের আনইভেন যে দাঁত আমরা বলি যে আনইভেন টেথ, সেগুলোকে ঠিক করে দেওয়া। ये क्या कितने दिनों का प्रोसेस होता है? ये प्रोसीजर वो डिपेंड होता है कि केस कैसे है। अच्छा। कुछ केस होता है कि 1.5 to 2 years में हो जाता है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट। ये 1 दिन में 2 दिन में ठीक नहीं होता, ये बहुत लंबा खासा चलता है। किसी किसी का 2-3 साल तक चलता है, लेकिन अच्छा। तो मैक्सिमम ये 2 to 2.5 years में ही चलता है, ये जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो होता है। अच्छा, उसमें एकदम आपका जो दांत का जो शेप है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा? एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट, मतलब जो भी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब उसमें ठीक होता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या उसके दांत में अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है? नहीं, वो अलग होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ऑर्थो जो ब्रेसेस होता है, ब्रेसेस लगाने से पहले हम देखते हैं कि उसमें कुछ कैविटी तो नहीं, फिर पायरिया, वो सब रूल आउट करते हैं। अगर कैविटी है तो पहले कैविटी का ट्रीटमेंट होगा, फिर जिंजवाइटिस जो पायरिया बोलते हैं, तो उसका पहले हम लोग सब कुछ रूल आउट करते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये एकदम लंबा ट्रीटमेंट है, तो वंस आप क्लिप लगाने के बाद वो फिक्स्ड रहेगा, वो बीच में नहीं खोल सकते। वो ये मतलब जो माने 2-2.5 साल तक जो ट्रीटमेंट चलता है वो फिक्स्ड है, उसका नहीं खोल सकते। वो कैसे ब्रश करेगा? वो उसका भी ब्रश आता है, और अच्छा। मतलब इलेक्ट्रिक ब्रश आता है जो अच्छा। वैसे नॉर्मल जो ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको और करना पड़ता है, क्योंकि वंस अगर हम लोग वायर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है वो क्लिप लगाने से? कोई कुछ लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल, पेनफुल मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल पेन नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत 5% रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो एडजस्ट होता है, अडॉप्ट होता है। टाइम के साथ वो अपने आप फिर आदत हो जाता है। कुछ लोगों को पहले कंफर्टेबल नहीं होता है, कि खाने पीने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो टाइम के साथ वो आदत हो जाता है।
अच्छा, ये क्या इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो आप बोल रहे हैं कि ब्रश माने नॉर्मल ब्रश और जो इलेक्ट्रिकल ब्रश होता है, पर आपके पास भी जाना पड़ता है क्लीन कराने के लिए? नहीं नहीं, वो खुद करना पड़ता अच्छा। है, क्योंकि नॉर्मल ब्रश से करने के बाद क्या होता है, दोनों क्लिप के बीच में ना वो जो खाना फंस जाता है वो क्लीन नहीं हो पाता है। उसके लिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरडेंटल टूथब्रश यूज़ करने के लिए। तो वो टूथब्रश के हेल्प से वो जो क्लीन नहीं हो पाता है वो क्लीन हो जाता है। আচ্ছা, তো আপনারা জানলেন যে এরকম 2-2.5 বছর ধরে কিন্তু এই ক্লিপটা রাখতে হয়, কিন্তু ওটা যখন খোলা হয় তখন কিন্তু একেবারে আপনার দাঁতটা যে অ্যালাইনমেন্টে হওয়ার কথা সেটা কিন্তু একেবারে ঠিকঠাক হয়ে যায়, এবং এই প্রসেসে থাকার সময় আপনার যে ওয়াশ করাটা সেটাও কিন্তু খুব একটা ঝামেলার বিষয় নয় যে আপনাকে 14 বার ডক্টরের কাছে যেতে হবে, আপনাকে ওয়াশ করাতে যেতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা শুধুমাত্র ওই ক্লিপিং এর যে প্রসেসিংটা থাকে সেটা করার পরে আপনারা নর্মালি বাড়িতে যেরকম ভাবে ব্রাশ করেন বা কিছু হয়তো একটা এরকম ব্রাশ দেওয়া হলো যেটা আপনাকে ওটা ক্লিন করতে সুবিধা করে, সেরকম কিছু ব্রাশের সাহায্যেই কিন্তু আপনার ওটা ক্লিন হয়ে যাবে। সুতরাং এই নিয়ে খুব প্যানিক করা বা এটা করতে গেলে খুব পেইনফুল একটা প্রসেস এটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। সুতরাং আপনাদের যাদের দাঁত আনইভেন্ট তারা কিন্তু অবশ্যই এই ক্লিপিং করাতে পারেন বা যে অর্থোডন্টিস্টের কাছে গিয়ে এটা থরো একটা ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন, এবং করালে আপনার যে দাঁতটা যে अलाइनमेंट एकदम एसे जाबे এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনার কি হবে সেটা কি সুবিধা হবে। अच्छा, ये जो क्लिपिंग वगैरह जो होता है वो उसमें क्या एज ग्रुप का कोई बात है, माने कितने उम्र से हम कर सकते हैं? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 12 to 13 ईयर से। अच्छा, उसके आगे नहीं? उसके आगे नहीं, क्योंकि सारा हम लोग का दांत में दो, एक परमानेंट टूथ होता है जो हम लोग का एडल्ट का है, एक प्राइमरी टूथ होता है जो बच्चे का होता है, जो दूध का दांत बोलता है, हाँ। जो गिर जाता है। तो जब परमानेंट टूथ सारा आ जाता है तब से हम वो 12 इयर्स के बाद ही आता है ना परमानेंट? हाँ, नहीं, वो परमानेंट 6 ईयर से चालू होता है। अच्छा, तो सारा मतलब 12 to 13 इयर्स के बाद हम ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो एक गिरता है एक उठता है, ये प्रोसेस 12 और 13 के बीच में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मेनली जो एक ग्रोथ होता है, बच्चे का एक ग्रोथ होता है, बोन ग्रोथ होता है, वो कम से कम 15 इयर्स तक रहता है। तो बेटर है कि ये बोन ग्रोथ होने के बाद अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। हाँ, मगर कि ये प्रोफाइल, हाँ, प्रोफाइल भी अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट्स को कम से कम 12 to 13 इयर्स तक कुछ नहीं करना है, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैविटीज का प्रॉब्लम ये क्या बहुत बच्चे लोगों के होता है या कुछ बहुत छोटे छोटे? नहीं, ये बहुत बच्चे का भी होता है, 2 साल का बच्चे में भी होता है, 3 साल का बच्चे में भी होता है। उसमें क्या ट्रीटमेंट है? उसको क्या उठाना जरूरी है? नहीं, हम लोग उसको पहले तो एक स्पेसिफिक एज होता है कि इस टाइम तक हमको दांत नहीं उठाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि बहुत सारा ट्रीटमेंट आता है, पल्पैक्टोमी, पल्पोटोमी, बहुत सारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है बच्चे का भी। तो वो सब ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक एज आता है, जैसे 6 साल का, 6 इयर्स का, जो अगर ऐसा थोड़ा बहुत होने लग गया पेशेंट्स को तब हम दांत उठाते हैं, नहीं तो हम बचाने की कोशिश करते हैं अप टू अ स्पेसिफिक एज लिमिट। আচ্ছা, তাহলে আপনারা শুনলেন যে একটা স্পেসিফিক এজ লিমিট পর্যন্ত কিন্তু দাঁতে হাত দেওয়াটা উচিত নয়, মানে 12 থেকে 13 বছর এর পর থেকে কিন্তু এই যে ক্লিপিং যে প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে আপনারা দাঁতের অ্যালাইনমেন্ট করবেন সেটা কিন্তু করাটা উচিত। বা তখনই আপনি যদি আপনার বাচ্চার যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে যে দাঁতের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নয় আপনাকে করতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনি তখনই যাবেন, তার আগে কিন্তু নয়। কেন তার আগে কেন নয়, যে সেই সময়টাতে দাঁত উঠছে বা পড়ছে এরকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। ওই 12-13 বছরের পর থেকে মোটামুটি 15 বছরের মধ্যেই জিনিসটা ঠিক হয়ে যায়। তো তারপরে আপনারা করতে পারেন। বা যেটা বললো যে বোন স্ট্রাকচার বা আমাদের ফেশিয়াল যে স্ট্রাকচার সেটাও কিন্তু চেঞ্জেস হতে থাকে। তো এই 15 বছরের পর গিয়ে আপনি একটা পুরো শেপ পাবেন, যে মুখের কিরকম শেপ, সেই অনুযায়ী যদি আপনি ক্লিপিংটা করেন তাহলে কিন্তু সেটা আরো সুন্দর হবে বা সেটা আরো একদম একটা ঠিকঠাক প্রসেসে হবে। তো এটা কোনো একেবারেই হাতি ঘোড়া বিষয় লাগলো না, যেরকম প্রথমে শুনে মনে হচ্ছিল যে অর্থোডন্টিস্ট, হোয়াট ইজ অর্থোডন্টিস্ট বা ये कुछ एक बहुत पेनफुल एक प्रोसेस
है, एक बहुत ज़्यादा कुछ है, ये एकदम नहीं है। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब यही है कि आपका जो दांत का जो अलाइनमेंट अगर आपका ठीक नहीं है तो आप ठीक करने के लिए जिसके पास जाएंगे वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो आप आइए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। हमारे यहाँ आज प्रियलक्ष्मी लाइसराम थे हमारे साथ, আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর প্রিয়লক্ষ্মী লাইসরাম, কনসালটেন্ট এবং অর্থোডন্টিস্ট, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল। আবারও আপনাদেরকে বলি যে যেরকম অন্যান্য ট্রিটমেন্ট নিয়ে অন্যান্য রোগ নিয়ে আমরা বলি ঠিক সেরকমভাবেই এখানে আলোচনা করি, ঠিক সেরকমভাবেই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালের আজকে যে ডেন্টাল যে বিভাগ রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং প্রিয়লক্ষ্মীর মতন একজন ডক্টরকে পেলাম যিনি আমাদের খুব ভালো করে ওরাল হাইজিন মেনটেন করার ব্যাপারে ভীষণভাবে ভালো করে বলে দিলেন। নিশ্চয়ই আপনারা বাড়িতে ওই দাঁতের মর্যাদা বোঝার জন্য এই ওরাল হাইজিন যে পথটা দেখালো প্রিয়লক্ষ্মী সেটাকে মেনটেন করবেন। এবং একদম শেষ হয়ে গেছে সময় প্রিয়লক্ষ্মী, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। হ্যাঁ, আর আপনাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনা শোনার জন্য, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকের মতো এখানেই শেষ করব। পরের দিন আবারও হেলথ এক্সপ্রেসে এরকম কোনো বিশিষ্ট ডক্টরকে নিয়ে বসবো এবং অন্য কোনো রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তার সমস্যার সমাধানেরও আমরা চেষ্টা করব। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ প্রিয়লক্ষ্মী। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন আপনারা। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।